हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 18, महाप्रभु डांसिंग एज ए गोपी। सो केह बल आरे रात्रि केने पोहाइले येन रसे केन कृष्ण वंचित करिले। Someone said, "O night, why have you come to an end? O Krishna, why have you deprived us of such happiness?" तो महाप्रभु जब रुक्मिणी के भाव में, महालक्ष्मी के भाव में संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, संकीर्तन चल रहा है, सारे भक्त लोग दिव्य आनंद में थे। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। जैसे सुबह आया, सूर्योदय अरुणोदय होने लग गया, तो सब भक्त लोग बहुत दुखी हो गए और रात्रि को ही जो है बोल बोल रहे हैं, हे रात्रि, आप समाप्त क्यों हो गए? हे कृष्ण, आपने हमको इस प्रकार के आनंद से वंचित क्यों कर दिया? चौदी के देखिए सब वैष्णव रोदन, अनुग्रह करि लेना श्री सच्चिनंदन। So on seeing the Vaishnavas in all directions crying, Sri Sachinandan became compassionate. सारे वैष्णवों को चारों तरफ इस प्रकार से रोते हुए देख करके श्री सच्चिनंदन अ, अनुग्रह किए, बहुत दयालु हो गए। माता पुत्र जेना है स्नेह अनुराग, यही मत सबारे दिले न पुत्र भाव। The Lord felt the same affectionate attachment for the devotees that a mother feels for her child. He then gave everyone the same feelings that a child has for his mother. भगवान उसी प्रकार से स्नेह अनुराग प्रकट किए अपने भक्तों के प्रति, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों के प्रति करती है। और वही भावना भगवान ने सभी भक्तों को प्रदान किया, जिस प्रकार से बच्चों को माँ के लिए होता है। मातृ भावे विश्वम्भर सबारे धरिया, स्तन पान कराय परम स्निग्ध हैया। और इसके बाद ये अद्भुत लीला हुई। In the mood of a mother, Vishwambar affectionately breastfed everyone. और माँ के भाव में और सभी भक्तों बच्चों के भाव में विश्वम्भर बड़े स्नेह पूर्वक सभी भक्तों को स्तनपान कराते हैं। कमला पार्वती दया महानाराय नारायणी, आपने हाइला प्रभु जगत जननी। So the Lord personally manifests as the mother of the universe in the form of Kamala, Parvati, Daya and Mahanarayani. तो भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से जगत जननी कमला मानी लक्ष्मी, पार्वती दुर्गा देवी, दया और महानारायणी के रूप में अपने आप को पर्सनली व्यक्त किए। So the supreme personality of God, it is the object of worship. He is the maintainer of everyone. When his energy becomes inclined towards his service and displays her variegated pastimes, she helps revive the constitutional position of the living entities. And when she directs her covering and throwing potencies to bewilder the living entities, the conditioned living entities accept this with respect. She then becomes a provider of the living entities' material enjoyment and temporary benefit. Although the manifestation of the Lord's pastimes as a mother in the house of Sri Chandrasekhar refutes the argument that these pastimes are unfit to perpetually exist, the Lord accepted the mood of a devotee to demonstrate that such a form was not the worshipable Supreme Lord's personal form. It is not that simply because he goes on the display the ideal example of enacting the pastimes of his various energies that he is the object of the subordinate conditioned soul's enjoyment. It is seen in the ideal example of a mother in this world that when her child accepts service from her, the child is unable to properly reciprocate because of its undeveloped consciousness. When the mother serves her child like a maid servant, her child is completely unable to serve her at that time. There is no possibility for the child to serve its mother at that point other than by accepting her service. When the child's consciousness is developed, it is also developed. It also develops a strong desire to become the master. Then also the child cannot understand that his mother has been serving him since his birth and that he should clear his debt to her.
by serving her. When such a mentality does awaken in the child, it no longer exhibits a propensity to enjoy material existence. Yet the illusory energy of Vishnu is so powerful that she does not award this qualification to everyone. The Supreme Lord can never become a servant or a maid servant. He is always the Lord and the enjoyer. His subordinate energies are his servants and maid servants. Those who desire to transform the Supreme Lord into a servant or maid servant are bewildered by the illusory energy of Vishnu. Lord Vishnu is never to be enjoyed by the conditioned living entities. Therefore, by accepting this material world, which is the transformation of the Lord's external energy, as the abode of enjoyment, the living entities who are transformations of the merged energy have ended up becoming masters of the material world, and while establishing the Sakta philosophy, they have taken leave from the path of spiritual life. When the conditioned souls feel that material enjoyment is their goal of life, then they engage the Supreme Lord as the supplier of their sense gratification. As a result, they become entangled in the ropes of material enjoyment. In God's Sundar's pastimes of accepting the mood of a devotee, his exhibition of pastimes as the mother of the universe is to demonstrate that service to the energetic Vishnu is the only propensity of the Adya Shakti, which is the worshipable goddess of the followers of Sakta philosophy. Vishnu is never to be considered the energy. The energy is always under the shelter of the Supreme Lord. God Sundar manifested such pastimes to confirm that the energies inclined towards the Lord's service are most favorable to the energetic and that the external illusion energies display of manipulating energies is incompatible with the manipulations of the internal energy. भगवान की ये जो दिव्य लीला है इससे ये प्रमाणित कर रहे हैं भगवान ये करना चाह रहे हैं कि भगवान की जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं कमला पार्वती दया महानारायण इत्यादि इत्यादि हाँ ये सब भगवान के सेवा के लिए है भगवान को सुख प्रदान करने के लिए और भगवान के हमेशा ये सबॉर्डिनेट रहते हैं उनके अंतर्गत रहते हैं उनके अधीन होते हैं इसलिए बद्ध जीवात्मा को चाहिए कि बद्ध जीवात्मा यानी कोई भी जीव जो है वो परम भगवान को एंजॉय समझ करके उनका सेवा करे ना कि उनसे एंजॉयमेंट प्राप्त करने की इच्छा से उनका सेवा को प्राप्त करे सत्य करी लेना प्रभु आपन आर गीता आमी पिता पितामह आमी धाता माता the Lord confirmed his statement in the Bhagavad Gita. I am the fathers and grandfathers. I am the support and the mothers. Lord Krishna says in Bhagavad Gita. So इस बात को भगवान इस लीला में प्रकाशित किए कि भगवान ही पिता है भगवान ही grandfather. He is father also, his grandfather also, and he is support and his mother also. So Krishna is mother, father, grandfather. तो इस लीला में भगवान जगत जननी के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है The Supreme Lord is the absolute truth. There is an eternal relationship between the Supreme Lord and the living entities who are his parts and parcels. The Supreme Lord is Vibhu or unlimited, and the Anu, the limited living entities who are related to him, are among his subordinate energies. The function of his illusory energy is to manipulate the Lord's various energies according to time, place, and circumstance. While confirming these topics, the Lord also established that even though the material designations of a living entity have no relationship with his Sarupa Lakshana or original characteristics, they certainly have a relationship with his marginal characteristics. तो परम भगवान हमेशा विभु अनलिमिटेड रहते हैं जीवात्मा अणु लिमिटेड रहते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं और भगवान अनेकों प्रकार से उनको सपोर्ट करते हैं फादर ग्रैंड फादर एंड हिज मदर ऑफ पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा भगवान गीता में बोलते हैं आनंद वैष्णव सब करे स्तनपान कोटि कोटि जन्मचार महाभाग्यवान So all those Vaishnavas who had been most fortunate for millions of lifetimes now blissfully drank milk from the Lord's breast. ये सभी वैष्णव जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से अत्यंत सौभाग्यशाली थे means they executed devotional service for many millions of lifetimes. That's why they could get this opportunity to become an associate of the Lord. Millions of lifetimes, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान का सेवा किए थे ये सब वैष्णव इसलिए उनको ये सौभाग्य मिल रहा है
that they are blissfully drinking the milk from the Lord's breast. The Lord assumed the form of uh, mother for all his devotees. स्तनपाने सबारा विरह केला दूरा प्रेम रसे सबे मत हाइल प्रचूरा. So by drinking the Lord's breast milk, their feelings of separation were mitigated and they became greatly admired in the mellows of ecstatic love. जिस प्रकार से स्तनपान करके जो भक्तों को बहुत विरह महसूस हो रहा था क्योंकि रात्रि समाप्त हो गई है, दिन आ गया है, अब भगवान ये लीला समाप्त होने वाली है, तो सब भक्त लोग बड़े दुखी थे, अत्यंत दुखी थे. कितने किस स्तर का दुख था ये कल हम लोग चर्चा किए कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि करोड़ों करोड़ों पुत्र के मृत्यु होने से भी ज्यादा दुख महसूस हो रहा है उन भक्तों को. मतलब इनडिस्क्राइबेबल, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इतना दुख था. तो महाप्रभु ये दुख देख करके उन्होंने ये कृपा किया. ही fed them with his breast milk. He was in the form of, he assumed the form of जगत जननी, मदर ऑफ द यूनिवर्स. और उसको प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके सब भक्त लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका जो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है वो चला गया. ये सब लीलार कबू आवती न है आविर्भाव तेरो भाव वेदे मात्र का है. Yeah, although the Vedas describe the Lord's appearance and disappearance, there is actually no end to his pastimes. हालांकि वैदिक शास्त्र इन सब लीलाओं को आविर्भाव तिरोभाव करके बताते हैं, लेकिन वास्तव में इन लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है, यानी ये लीलाएं चलती रहती हैं. सो ये लीलाएं निरंतर चलती हैं. किसी न किसी ब्रह्मांड में सब लीलाएं चल रही हैं. आप में से अगर किसी को इच्छा है लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप साधना भक्ति करके अपने आप को उस स्तर पर लेके जा सकते हैं, ताकि जैसे इस संसार में इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस ब्रह्मांड में आप ट्रांसफर किए जा सकते हैं जहाँ पे भगवान की सब लीलाएं चल रही हैं. इस प्रकार की इन लीला में पार्टिसिपेट करने की किसकी किसकी इच्छा है, यह साथ ऊपर करें. आप में से कितने भक्त लोग महाप्रभु की इस लीला में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? बस कुछ ही भक्त लोग. तो ऑल द पास टाइम्स ऑफ द चैतन्य महाप्रभु आर वेरी वंडरफुल. और ये लीला तो विशेष रूप से अत्यंत अद्भुत है. महाराज राजेश्वर प्रभु विश्वम्भर यही रंग कर लेना नदी या भीतर. लॉर्ड विश्वम्भर द किंग ऑफ किंग्स परफॉर्म सच पास टाइम्स इन नदिया. महाराज राजेश्वर विश्वम्भर इज द किंग ऑफ किंग्स. राजेश्वर महाराज राजेश्वर ये सब लीलाएं नदिया में कर रहे हैं. निखिल ब्रह्मांड जत स्थूल सूक्ष्म आछे सब चैतन्य रूप भेद करे पाछे. All gross and subtle elements in the entire universe are manifestations of Lord Chaitanya that latter appear separately. तो समस्त ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड को भगवान का ही एक विस्तार माना जाता है. दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, दिस यूनिवर्स, entire universe is also manifestation of the Supreme Lord. Supreme Lord has manifested in the form of this universe. So इच्छाएं करे सृष्टि इच्छाएं मिलाए अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे लीलाएं. So out of his own sweet will, he creates and annihilates. He creates innumerable universes as one of his pastimes. हाँ, आप लीला के रूप में, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, होता है कोई, वो लीला की तरह से खेलते खेलते कुछ बना देता है ना. हाँ, बीच बीच में जाता है, घर बना देता है ऐसे. Similarly, the Supreme Lord, out of his playful pastime, sweet will, he creates this entire material world and then annihilates it. Again and again he does so out of his own sweet will, अपने आनंद से. इच्छा में महेश्वर इच्छा काचे तान इच्छा नहीं करे हे न को नाचे. He is the Lord of lords and supremely independent. He appears in whatever form he desires. Who is there who will disobey?
He is Lord of Lords. Krishna is Lord of Lords, and he is supremely independent. Nobody can question him. Hey, why did you do this? Can anybody ask? No. But you can be asked, huh? If you do something bad or wrong, you will be asked, why did you do this? Huh? But nobody can ask Krishna, why did you do this? कृष्ण को कोई प्रश्न नहीं, he is supremely independent and he appears in whatever form he desires. जिस भी रूप में उनको आने की इच्छा होती है वो आ सकते हैं. If he desires that I want to become a fish, he can become fish. Can you? No. But when Krishna desires I want to become a fish, he can become fish, but not ordinary fish, very wonderful fish. The fish which can uh, cover the entire ocean. Ocean becomes very small. Even an ocean cannot accommodate the Lord in the form of fish when he appears in the form of fish. That is Matsya Avatar. You know? हाँ, मत्स्य अवतार सुना? हाँ, तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान है. Krishna can appear in any form, and who is there who will disobey him? कौन है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? तथा पिताहार काच सकली सुसत्य जीवतारी बार अलग ये सब महत्व. Nevertheless, all of his forms are the supreme truth. He manifests such glorious forms to deliver the living entities. So भगवान हालांकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और जिस भी रूप में आना चाहे वो आ सकते हैं, उनको कौन क्वेश्चन कर सकता है. लेकिन जिस भी रूप में भगवान आते हैं वो सब के सब वंडरफुल है और सुप्रीम ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, दिव्य है, किसी भी रूप में. Even even if he appears in a pig form, pig. Generally, pigs are not so beautiful. Pigs very cheap. But when Krishna comes in the form of a pig, he is very attractive, very beautiful. More beautiful than anybody in this world. Most attractive. There was a devotee in South India, a Brahmin. So he used to worship Lord Narayana. And for many years he worshipped Lord Narayana. Then Narayana came and asked, what do you want? Then the devotee said, desired that I want to see you in the form of pig incarnation. When you appeared in the pig Varaha incarnation, I want to see that form. So Lord Narayan said, Tathastu, let it be so. And then he appeared in a very pig form. And that form of pig, Lord Narayana in the form of pig, he was so attractive, so beautiful that this Brahmin, as soon as he saw that form, he became completely enchanted and he became unconscious. He fell down. He was so captivated with that form. Krishna manifests in whatever forms he always remains very divine. And he manifests such glorious forms to deliver the living entities. जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म स्वीकार करते. यह न बुझिया कौन कौन पापी जन प्रभु रे भलाए गोपी खाइया अपना. Without understanding this fact, some sinful persons ruin themselves by calling the Lord a gopi. So जब भगवान के जो इस प्रकार के दिव्यता को जो लोग नहीं जानते हैं कि भगवान किसी भी भाव को प्रकट करते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, वो वास्तव में भगवान ही रहते हैं. उनपे उस रूप का या उस फॉर्म का जो नेचर है या रूल्स रेगुलेशन है, लिमिटेशंस है, वो लागू नहीं होता है. इस बात को जो नहीं जानते हैं और भगवान के स्वरूप के अनुसार उनके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं कुछ विचारधारा, तो ऐसे लोग पापी होते हैं. तो यहाँ पे जब महाप्रभु गोपी के रूप में नृत्य कर रहे थे, तो कुछ पापी लोग नहीं जान पाने के कारण उनको गोपी गोपी कह के पुकारते हैं. बट ही इज नॉट गोपी, ही इज सुप्रीम लॉर्ड ऑलवेज. ये जानना चाहिए. तो भगवान ये यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है समझने के लिए
कि भले ही भगवान भक्त के रूप में आते हैं कभी कभी, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भक्त बन के आए, बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट ही इज नॉट अ डिवोटी. He has assumed the mood of a devotee, but he must be worshipped and accepted as the Supreme Lord himself, Supreme Controller. उनको परम भगवान के रूप में हमको जानना चाहिए. हाँ, भले ही वो he has assumed the bhav of a devotee in order to relish devotional feelings and in order to uh, uh, inspire others to take to Krishna consciousness. But he always remains the Supreme Lord. ये हमको जानना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक, जैसे कोई टीचर है, तो टीचर हमेशा टीचर ही रहेगा. वो टीचर के चेयर में बैठेगा तो भी टीचर रहेगा. कभी कभी टीचर होते हैं ना, कुछ एक सॉल्व करने के लिए दे देते हैं और फिर जा करके पीछे स्टूडेंट के साथ बैठ जाते हैं. हाँ, अभी किसी स्टूडेंट के बाजू में बैठा है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो टीचर का, और भाई तुम भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकता है. हाँ, टीचर रिमेन्स द टीचर. इफ सपोज इफ टीचर्स कम एंड सिट्स बिसाइड यू ऑन योर टेबल, chair, so does that mean teacher becomes a student? No. Similarly, when the Supreme Lord comes down and appears like us in any form, in human form or in any form, but still he remains the Supreme Lord. That is his glory. He never becomes affected or controlled by the form he takes, whatever form he may take. तो भगवान, ये हमको जानना चाहिए. तो टीचर जो है, स्टूडेंट के पास आके बैठ करके उसके साथ उसको सिखाने के लिए वो भी एबीसीडी लिख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको एबीसीडी ही बस आता है. वो वेल क्वालिफाइड. उसी प्रकार से कृष्ण जो है, डिवोटी के भाव को रिलीज करने की इच्छा से डिवोटी का मूड लेके आए, और कैसे कृष्ण की भक्ति करना है वो सिखाने के लिए. लेकिन कुछ जो पापी लोग हैं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ पापी लोग उनको ऐसे डिवोटी समझ बैठे. हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वॉज अ सेंट, वॉज अ सन्यासी. तो ऐसे लोगों को यहाँ पे तो वृंदावन दास ठाकुर तो पापी बोल रहे हैं. और इस लीला में तो भगवान ने क्योंकि गोपी का रोल किया, देवी के भाव में डांस किया, तो कुछ लोग उनको गोपी या देवी शक्ति समझ लेते हैं, तो वो भी पापी लोग. ही ऑलवेज रिमेन्स सुप्रीम लॉर्ड. दैट इज हिज पोजीशन. अद्भुत गोपिका नृत्य चारि वेद धन, कृष्ण भक्ति है यह करिल श्रवण. By hearing about the Lord's wonderful dance as a gopi, which is the treasure of the four Vedas, one attains devotional service to Krishna. ये कृष्ण का गोपी के रूप में, गोपी के भाव में जो अद्भुत नृत्य किया गया है ये लीला में, ये जो चारों वैदिक शास्त्रों में का अद्भुत ट्रेजर है. चारि वेद धन, चारों वेद शास्त्रों का धन है. इसको जो श्रवण करता है वो कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करता है. खैला बड़ाई पूरी प्रभु नित्यानंदा, से लीलाए हेना लक्ष्मी काच्य गौर चंद्र. In that pastime, Nityananda Prabhu played the role of an elderly lady, while Gaurchandra took the form of goddess Lakshmi. तो इस लीला में नित्यानंद प्रभु एक वृद्ध महिला का रोल किए थे, और महाप्रभु लक्ष्मी के रोल किए थे. ये ड्रामा कर रहे थे. बट ड्रामा करते वक्त भगवान के लिए ड्रामा और एक्चुअल में, वास्तविकता में कोई अंतर नहीं. वो जब ड्रामा भी करते हैं तो जिस भाव को लेते हैं वो वही बन जाते हैं, उस पर पूरी तरह से घुस जाते हैं, और स्वरूप भी वैसा हो जाता है, रूप भी हो जाता है. जैसे यहाँ पे लक्ष्मी के भाव में आए, जगत जननी, और भक्तों को जो है ब्रेस्ट भी फीड कर रहे हैं. He assumed that भाव and the स्वरूप also is became like Lakshmi. यखन जे रूपे गौर चंद्र जे विहरे, सही अनुरूप रूप नित्यानंद धरे. So whenever Gaurchandra enjoys pastimes in a particular form, नित्यानंद assumes a form suitable for those pastimes. तो गौरचंद भगवान जब भी कोई एक विशेष प्रकार का फॉर्म स्वीकार करते हैं भाव उसमें एंजॉय करने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु भी उसके अनुसार कोई ना कोई फॉर्म एज्यूम कर. प्रभु भाई लेना गोपी नित्यानंद बढ़ाई, के पूछी में यह आचार अनुभव नाय. So the Lord became a gopi and Nityanand became an elderly lady. जब भगवान
जैसा भी रूप लेते हैं नित्यानंद प्रभु उसके अनुसार उनको असिस्ट करने के लिए रूप लेते हैं। सो हु कैन अंडरस्टैंड दिस अदर देन वन हु हैज रियलाइजेशन ऑफ इट। इसको कौन समझ सकता है? जिसको इसका साक्षात्कार है वही समझ सकता है। कृष्ण अनुग्रहाचार्य से ए मर्म जाने, अल्प भाग्य नित्यानंद स्वरूप अनचैने। ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय कृष्ण कैन अंडरस्टैंड दिस इन ट्रूथ। You need to be favored by Krishna in order to understand Krishna. You understand? Yeah, you required to be favored by Krishna. When Krishna will favor you, then you can understand Krishna. Who is Krishna? Why he is performing so many different pastimes? So less fortunate persons like me cannot understand, cannot recognize Nityananda, cannot understand. So अल्प भाग्य, जिसका भाग्य, जिसका फॉर्च्यून कम है, वो नहीं समझ सकते हैं। किबा जोगी नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी, जार जेना मत इच्छा न बोलाए केनी। So someone may consider Nityananda yogi, someone may consider him a devotee, and someone may consider him a jnani. They may say whatever they like. स्पेशली नित्यानंद प्रभु को कोई समझ नहीं पाता इतनी आसानी से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उचित अलग अलग प्रकार का भाव स्वीकार करते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको असिस्ट करने के लिए वैसे भाव को स्वीकार करते थे। तो लेकिन बता रहे हैं कि जिनके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है वही समझ सकते हैं, नित्यानंद प्रभु को पहचान सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग नहीं पहचान पाने के कारण कुछ लोग अलग अलग विचारधारा से, कुछ लोग सोचते हैं कि नित्यानंद एक योगी है, कोई बोलता है वो एक भक्त है, कोई बोलता है वो ज्ञानी है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, कोई भोगी है, ऐसे अलग अलग सोचते हैं। नित्यानंद प्रभु जब गौड़ देश में आए थे प्रचार करने के लिए, तो कभी सन्यास ड्रेस में रहते थे, कभी जो है बहुत सारे अलंकार पहन लेते थे। तो लेकिन एक ब्राह्मण, बहुत पंडित ब्राह्मण, तो वो भी नहीं समझ पाया। लेकिन वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का क्लासमेट था, तो तुरंत दौड़ के गया, जाकर के चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा कि आपका निताई क्या है, क्योंकि महाप्रभु तो बहुत सम्मान देते हैं नित्यानंद प्रभु को। तो इसको कम से कम उसको वो घंटी बच गई, क्योंकि ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, सात्विक था। तो नित्यानंद प्रभु के बिहेवियर को देख करके वो हालांकि समझ नहीं पाया, लेकिन घंटी इसलिए बच गई क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी हैं, आइडल सन्यासी हैं, वो नित्यानंद प्रभु को इतना सम्मान दे रहे हैं, उनको पूजा करते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो बात है विशेष नित्यानंद। तो इसलिए जाके पूछे, फिर महाप्रभु उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप नित्यानंद प्रभु को कोई साधारण व्यक्ति या सन्यासी सबसे कंपेयर मत करो। उन्होंने जो अलंकार पहन रखे हैं वो कृष्ण की नौविधा भक्ति है। भक्ति ही अलंकार के रूप में उनके शरीर में आती है। आपने आठों दसों उंगलियों में सोने और हीरे से जड़ित अंगूठी पहनते थे गॉडरेज प्रचार करते वक्त, और 15-20 हार जैसे पहनते थे, और पैर में अंगूठी, पायल, ये सब, और यहाँ पे कुंडल। तो ये सब देख करके वो ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया था कि ये सन्यासी है और ये सब इतना क्या है। तो महाप्रभु समझाए कि उसके जो अलंकार हैं वो कृष्ण भक्ति के अलग अलग जो अंग हैं वही अलंकार बन करके शरीर में, वो भोग विलास नहीं समझो। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि दे में से वॉट एवर दे लाइक, ये से के ने चैतन्य र नित्यानंद नाय, तथापि से पाद पद्म राहु का हृदय। इवन इफ नित्यानंद इज द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आई वुड स्टिल कीप हिज लोटस फीट इन माई हार्ट। जो लोगों को जो बोलना है बोले, हाँ, भले ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट क्यों ना हो, मैं फिर भी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग फेथ। कितना दृढ़ विश्वास है वृंदावन दास ठाकुर का नित्यानंद प्रभु के प्रति, कि नित्यानंद प्रभु की महिमा बहुत अपार है, कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी को ना समझ पाने के कारण कोई उनको कुछ भी समझता है, हाँ, जिसको जो समझना है समझे, और फिर फाइनली बोलते हैं कि चलो ठीक है, नित्यानंद प्रभु की ये सब महिमा मुझे नहीं मालूम। वो अगर सबसे इंसिग्निफिकेंट सर्वेंट भी अगर क्यों ना हो जाता है महाप्रभु के, हाँ, फिर भी वो मुझे उनके चरण कमल मेरे हृदय में मैं धारण करता हूँ, बिकॉज ही इज असिस्टिंग और सर्विंग लॉर्ड चैतन्य ऑलवेज। और फिर आगे बोल रहे हैं, एता परिहारे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे रहु परे। Therefore I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him। जिसको जो समझना है नित्यानंद प्रभु को समझे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर खबरदार
कोई भी पापी व्यक्ति उनका अगर निंदा करने का प्रयास किया तो उसके सिर में लात मार दूंगा मैं, ऐसा बोल। हाँ, हाँ। Therefore, I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him, because he is a servant of Lord Chaitanya. So anyone who is a devotee or servant of the Supreme Lord, he should never be criticized, even if he happens to be very uh, what you say insignificant person uh, in our material estimations. But we should never criticize. Vrindavan Thakur इस भाव में बोल रहे हैं, those who are sinful minded because of their previous misdeeds cannot understand the truth about Sri Nityananda Baladev or his transcendental activities, and thus they blaspheme him. Topics of the authors kicking them on their heads have been mentioned to reveal that the conceptions of such abominable sinful persons are extremely disgusting and contemptible. By receiving such chastisement from a Vaishnava, the good fortune of those who are averse to the service of Hari is awakened, but ordinary foolish people cannot understand this. सुशीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद का तात्पर्य है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे अत्यंत पापी व्यक्ति जो भगवान नित्यानंद बलदेव की महिमा को न जान पाने के कारण उनका निंदा करते हैं, तो ऐसे वृंदावन ठाकुर जैसे महान वैष्णव के का डांट पा करके उनके चरणों का लात खा करके उनका जो है सौभाग्य उदित हो जाएगा, और वो भगवान हरि की जो कृपा है, भगवान हरि की सेवा के प्रति जो अभी तक विमुख थे उनके प्रति उन्मुखता आ जाए। तो भक्तिदान महाराज जी के शब्दों में ये है बात कि यहाँ पे आ, ये वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो बोला जा रहा है हालांकि बहुत स्ट्रांग है। कोई बाहर वाला व्यक्ति पढ़ेगा तो वो बोले अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, देखिए कैसा बोल रहे, ग्रंथ में ऐसी बातें लिखते हैं, तबे लाथी मारो तार सिरे रहो परे, कि ऐसे पापी व्यक्ति के सिर में मैं लात मारता हूँ। लेकिन भक्तिदान महाराज जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति के लिए सौभाग्य है, क्योंकि उनके चरणों का धूल मिलने का और क्या तरीका है, क्योंकि वो खुद तो जाके लेगा नहीं, उसको श्रद्धा नहीं, तो फिर भगवान हरि से विमुख है। तो वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं। हाँ, जो वो कृपा नहीं चाहते हैं तो उनके तरफ दौड़ करके खुद जो है अपने चरणों की धूल दे रहे हैं, कृपा प्रदान कर रहे हैं। मध्य खंड कथा जना अमृत श्रवण, यही लक्ष्मी वैसे नृत्य कैला नारायण। The topics of Madhya Khanda wherein Lord Narayana's dance in the form of Lakshmi are narrated are just like shower of nectar. ये मध्य खंड की कथा अमृत के समान है, जिसमें भगवान नारायण लक्ष्मी के रूप में नृत्य कर रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक अमृत के समान। नाचिला जननी भावे भक्ति सिखाई, या सबार पुरीला आसा स्तन पियाया। जब भगवान जननी के भाव में नृत्य किए और सबको भक्ति सिखाए, और फिर उन सब के जो इच्छाएं हैं उनको तृप्त किए अपना स्तनपान करा करके। सप्तदिन श्री आचार्य रत्नेर मंदिरे परम अद्भुत तेजशीला निरंतरे। So there was a wonderful effulgence manifest for 7 days at the house of Sri Acharya Ratna. चंद्रशेखर आचार्य के घर पे महाप्रभु ये लीला किए थे, और लक्ष्मी के रूप में नृत्य करने की लीला किए। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि जिस रात्रि को ये लीला हुई थी, उसके अगले 7 दिन तक श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर से एक अद्भुत तेज निकलता रहा। चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र जेना ज्वले, देखा है सुकृति सब महाकुतूहले। So it appeared that the moon, sun, and lighting were simultaneously illuminating the house. Fortunate persons were greatly pleased to see this. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूर्य, चंद्र और विद्युत एक साथ उनके घर में प्रकट हो गया है 7 दिन तक, और जो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे देख करके अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। जते का ऐसे लोग आचार्य घरे, चक्षु मिली बारे सकते केहा नाही धरे। Those who came to Acharya Ratna's house were unable to open their eyes. उनके घर में जो आता था अपनी आंखें नहीं खोल पाता था, इतना इफल्जेंस था, इतना तेज था।
जैसे सूर्य के सामने अगर आ जाए कोई तो आंख नहीं खोल पाता है, ऐसा विफलजेंस आ रहा। लोग बोले कि कारण आचार्य घरे दुई चक्षु मिलित फूटिया जिन पड़े। तो लोगों को ये लीला तो केवल भक्तों के बीच में थी। तो लोग पूछते थे कि व्हाई डू आवर आइज बिकम ब्लाइंडेड व्हेन वी ओपन देम इन आचार्य हाउस। आचार्य के घर पे आकर के, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे आकर हम आंखें खोलते हैं तो अंधा जैसे कैसे हो जाते हैं, आंख नहीं खोल पाते हैं। सुनिया वैष्णव गण मने मने हासे, केहा आरे किछु नहीं करे प्रकाश से। जब वैष्णव सुनते थे तो मन मन में हंसते थे, लेकिन कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, रहस्य नहीं बताते थे कि यहाँ पे महाप्रभु लक्ष्मी के रूप में, स्वरूप में प्रकट हुए थे और नृत्य किए थे, लीला किए थे, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय लीला थी। हेन से चैतन्य माया परम गहन, तथापि यह किछु न पूछे कारण। Lord Chaitanya's potencies are most confidential, yet no one can understand how this is so. तो चैतन्य महाप्रभु की जो माया है, शक्ति है, वो परम गहन है, वेरी कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, लेकिन फिर भी कोई ये समझ नहीं पाता था कि कैसे है। ये मता चिंतन लीला गौरचंद्र करे, नवद्वीप सब भक्त सहित विहरे। चिंतित गौरचंद्र enjoyed inconceivable pastimes with the devotees in नवदीप। इस प्रकार से गौरचंद्र भगवान नवदीप में भक्तों के साथ अचिंत्य लीलाओं को एंजॉय कर रहे हैं। सुना सुना अरे भाई चैतन्य र कथा, मध्य खंडे जे जे कर्मा कैला यथा यथा। सुनो सुनो मेरे भाइयों, मध्य खंड की इस कथा को सुनिए। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, ओ ब्रदर्स, प्लीज हियर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एक्टिविटीज एंड प्लेसेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य's pastimes in मध्य खंड। ये आप सुनते जाइए। हाँ, क्योंकि ये लीला जब समापन हुआ तो कहीं लोग जो है बंद न कर दें, लीव करके बाहर न चले जाएं, इसलिए बोल रहे हैं सुनो सुनो भाई, अभी खत्म नहीं है, मध्य खंड की कथा चल रही है, ये लीला कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट लीला आएगी। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहुँचान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। Accepting Sri Chaitanya Nityananda Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of their lotus feet। श्री चैतन्य चांद, नित्यानंद चांद को ही अपना एकमात्र बनाने वाले जान, एकमात्र अपना जान बनाने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ कर रहे हैं गुणगान। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 19, द लॉर्ड्स पास्टाइम्स इन अद्वैता's हाउस। अद्वैत आचार्य के घर पे महाप्रभु की लीला, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।